धार्मिक संस्था से है। और आज के आयोजन के लिए मैं राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच और हिमालयन स्टडीज़ के डायरेक्टर पंडित जी का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने तमाम रिसर्च स्कॉलर और जो नए काम किए जा रहे हैं बुलाने का मौका दिया। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं निश्चित रूप से मेजर जनरल वीपी सिंह जी का, क्योंकि उन्होंने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। और इट इज़ अ फैक्ट when the military and air force officer, they have a practical knowledge, and during their career or after the retirement they come out with the theoretical perspective, and the mixture of the theoretical and the practical knowledge make them deadly scholar. तो हम लोग जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जो पढ़ाई लिखाई में करते हैं, इनके मैच में आने के लिए हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। A lot of insight he has developed. That will be a part of your research. We can pick up and do meaningful research related to the Himalayas. A lot of things have been said by Major General Singh. Like, there are certain things which are still I would like to focus on. Why Himalaya is important for India? Where are the mistakes we have committed? तो कई ऐसी बातें हैं जो हम शुरुआत से लेकर बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे कि जब ब्रिटिश साम्राज्य पूरी शक्ति के साथ इस क्षेत्र में था, तो उसके लिए इंडिया वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। एंड many scholars and strategists they thought it कि कर्जन था, कर्जन गवर्नर जनरल था इंडिया का, and he said it outrightly that Tibet is no use for Britain. So Himalaya range was limited to the limit of India, and India was more important. That is how Nepal was also sidelined for British policy. लेकिन धीरे धीरे जब स्थिति गंभीर बनने लगी, तो हम जानते हैं कि नेपाल, भूटान, सिक्किम, ये हिमालयन स्टेट जिसे हम कहते हैं, सिक्किम बाद में इंडिया का पार्ट बन गया। तो ब्रिटिश कार्यकाल में जब तक ब्रिटेन था, चाइना के प्रतिपक्ष में, ब्रिटिश इंडिया was much more powerful in the Himalayan range. Despite being, it did not have much interest in the Himalayan range to occupy Tibet or occupy other parts, put inside to the China, but it was very powerful. लेकिन दुर्भाग्य की इतनी मजबूती के बाद जब हिमालयन रेंज में हम इतने मजबूत थे, then how did it happen that the buffer was started melting down, and one after another, two layers, one was Tibet, another was the second layer, which we call it Nepal and Bhutan, were also under the influence of China. So that was a massive mistake, diplomatic mistake, which has been committed by the Indian leaders, those who were on the driving seat. And if you go back into the history, what do we see in the 1934 Congress अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन जो अक्सर हर साल में एक बार होता था, तो नेहरू जी in 1934 said it कि China is a sister country and we need to move together. There is no doubt about it. Why he was so fascinated about Chinese policy and Chinese leaders in China as a country, I do not know, but there are certain, merely as a scholar, as a student of political science, many of us will be reading, he was a very idealist. He was not at all completely idealist. Had he been idealist, he did sign the agreement and treaty with Bhutan in 1949, he did sign with Nepal in 1950 and Sikkim in 1950. अगर वो केवल ऐसा होता तो वो नहीं करते, तो उनके दिमाग में चाइना का डर भी था, चाइना का संशय भी था, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना से इतना प्रेम क्यों था, चाइना को किस आसक्ति में वो एक बात ये मान सकते हैं कि वो उनको एशियन सोलिडरिटी के वो बात करते थे कि एशियन सोलिडरिटी को हम और चाइना मिलकर आगे लेकर चलेंगे। जो भी हो, वो एक ब्लंडर जिसे हिमालयन ब्लंडर कहा जाता है, और दैट हैज बीन कमिटेड। और हमें मालूम है कि भाई साहब ने, जब डॉक्टर साहब ने प्रश्न पूछा था एलबी सिंह साहब से, और उसका एक डिप्लोमेटिक एंगल भी था कि भारत के प्रधानमंत्री जब अमेरिका में हैं, तो उनकी वाहवाही चीन अगर कर रहा है तो उस पर भावावेश में न जाए,
China is a very pragmatic and smart country. Very smart country, very shrewd at the same time. I've been reading Chinese history, Chinese leaders' comments and lectures, and what do we find? कि चाइना थोड़ा सा नाराज नहीं कहेंगे, अपने आप को संभालता है, अपने आप को रीपैकेजिंग करता है when it sees that India and America are moving together. You can cite many examples during the nuclear test and before the nuclear test, in the early 90s, early 80s, and even after 2000. तो उसमें उसको लगता है कि अमेरिका बहुत दूर है. America single-handedly cannot hurt China as it wanted to. Even India is not capable of doing it all alone. But when they are together, India and America are together, they can create a problem. आपको मालूम हुआ कि खंपा rebellion was thought by America in early 50s. America wanted to encircle China with the help of India. और उसके लिए उन्होंने नेहरू को न्योता भी दिया था, और नेहरू को बड़े ही तजुर्बे से कहा था कि भारत अगर आगे बढ़ता है तो चीन को हर तरीके से, दैट वाज आइडियोलॉजिकल फाइट, और जो पॉलिटिक्स में उस समय कोल्ड वॉर में आइडियोलॉजी वाज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, तो उसको घेरने का काम कीजिए. नेहरू जी ने फ्लैटली सेड नो, कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं. इसके लिए वो न्यूक्लियर आर्सेनल देने की बात थी. चाइना तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, टेस्ट किया 1964 में. उसके बहुत साल पहले भारत को ये न्योता अमेरिका से मिला था कि आप ऐसा करें तो आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन नेहरू जी ने नहीं कहा. तो उसके बाद अमेरिका ने अपने बूते पर करीब कुछ हजार तिब्बतन को, जिसमें कुछ नेपालीज भी थे, खंपा जिसे रेबेलियन कहा जाता है, उसको तैयार किया. पैरासूट से भारत चूंकि इजाजतें तो नेपाल के माध्यम से, माउंट एवरेस्ट के माध्यम से उनको तिब्बत में गिराया गया. बाय द टाइम द कम्युनिस्ट फोर्सेज ऑफ चाइना वाज मच लार्जर इन टर्म, इन नंबर, एंड दे मच स्ट्रॉन्गर, सो इट डिड नॉट मेक एनी इम्पैक्ट. कुछ दिन चला खंपा रेबेलियन एंड इट वाज गॉट डिफीटेड, एंड देन अमेरिका लॉस्ट इंटरेस्ट. बाय द टाइम व्हाट डू वी सी इन द 1970s, the subtle diplomacy started, the ties which was broken was being created by Kissinger and Nixon. तो वो एक अलग ध्रुव की शुरुआत हुई. मैं यहाँ पर केवल ये बातें फ्लैश करना चाहता हूँ कि 21वीं शताब्दी जब शुरू हुई तो 21वीं शताब्दी कहा गया कि इट इज़ एन एशियन सेंचुरी. ये एशिया के देशों के लिए है, और एशिया के दो महत्वपूर्ण देश हैं, वो है भारत और चीन. ये दोनों सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, सभ्यताओं वाला देश है, जो जिनकी बहुत पुरानी परंपरा रही है. 17वीं शताब्दी में भारत का जीडीपी पूरी दुनिया में करीब 24-25% था, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा था. आज की तारीख में अमेरिका में सबसे बड़ी इकॉनमी है, तो उसका भी अभी 20-21% है. चाइना ऑन द सेकेंड 15-16%. हम बहुत पीछे हैं, लेकिन ये तो था कि हम सबसे बड़े थे. तो ऐसी परिस्थिति में जब 21वीं शताब्दी में दो बड़े देश मिलकर दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का मार्गदर्शन करेंगे तो अच्छा होगा. लेकिन चीन इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं हुआ. पहले भी राजी नहीं था, 50 के दशक में भी राजी नहीं था, और आज के दशक में भी आज भी वो राजी नहीं है. चीन के जितना भी लिटरेचर आप पढ़ेंगे, गवर्नमेंट के लिटरेचर, आपको नजर आएगा कि बाई द 2000 it was always believing in the multilateralism. It was moving along with the other countries, because by the time it was not stronger economically, it was going up to the policies of the Deng Xiaoping, started in 1978. लेकिन उस समय तक वो मजबूत नहीं हुआ था, तो वो टीम बनाकर चलता था. Whether it is a climate policy, whether it is any kind of problem which you could see, the Chinese policy was most of the time along with India and many other countries. लेकिन वो चीज़ें अब उसको लगा कि हम तो दुनिया के मठाधीश बन गए हैं, हम जहाँ से खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी, अमिताभ बच्चन के डायलॉग, और वो उसी पॉलिसी को वो अपना रहा. एंड दैट हैज बीन डूइंग. अब हिमालयन रेंज के लिए, जैसा कि कहा, हिमालय हमारे लिए केवल एक माउंटेन नहीं है. हिमालय हमारे जब किसी धर्म की शुरुआत नहीं हुई थी, जब मानवता अभी पुष्पित नहीं हुआ था, तो उस समय हमारी संस्कृति की विरासत वहाँ से निकल कर आ रही थी. भगवान शिव का, भगवान माँ पार्वती का वो देवस्थल है. कई अभी
सैकड़ों ऋषि मुनि वहाँ पर, इसके अपने सांस्कृतिक आयाम हैं। चाइना के लिए हिमालय कोई सांस्कृतिक आयाम नहीं है, उसके लिए केवल मेयरली स्ट्रैटेजिक लैंडस्केप और माउंटेन। बाकी दुनिया के अन्य लोग, अन्य देशों के लिए भी, अमेरिका के लिए भी हिमालय कोई सांस्कृतिक आयाम नहीं है। तो हमारे लिए वो सांस्कृतिक आयाम भी है। दूसरा वो आर्थिक, आपको मालूम होगा कि हिमालयन रेंज में डॉक्टर साहब ने दिखाया भी, और आप रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, जड़ी बूटियों का अद्भुत वहाँ पर चीज़ें पाई जाती हैं, जो कई रोग, कई मेडिसिनल प्लांट्स वहाँ पाए जाते हैं। कई ऐसे खनिज संपदा हैं जो तिब्बत में मिलते हैं और पूरे हिमालयन रेंज में मिलते हैं, जो मानवता को एक बेहतर स्वरूप देने के लिए पर्याप्त है। अब 21वीं शताब्दी की जब हम बात कर रहे हैं, तो total population of the world, 65% of the population are living in the side of Asia, which is called Asian continent. और एशियन कॉन्टिनेंट की अगर बात करेंगे तो फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा रिजर्वॉयर इज द तिब्बत प्लेटो। that covers most of the rivers which move around from the Tibet, goes to South Asia, Central Asia, Middle East, Southeast Asia, the complete Asia where we get the water, fresh water, it comes from the reservoir of the Tibet. अब अगर तुलनात्मक पानी की तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे तो पूरे दुनिया में, एशिया में फ्रेश वाटर का प्रतिशत सबसे खराब है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मामले में 1/10 है, और बाकी अन्य अफ्रीका के देशों से भी अगर फ्रेश वाटर की बात करेंगे तो एशिया में 1/3, 1/4 है। और इतना बड़ा संसाधन होने के बावजूद भी अब चाइना इसको क्या कर रहा है? China, if geographically you see the divide, it is divided into two parts, South China and North China. अब उसने तिब्बत को भी कई खंडों में बांट दिया, कई राज्यों को बांट दिया, कुछ को आमदों को, कुछ पार्ट को अपने में ले लिया। लेकिन बेसिकली South China is a reservoir of water, North China is the agricultural land for China. And what it has started doing, creating a massive dam, जो छोटे मोटे डैम नहीं, वो डैम कंट्रीज के कहा जाता है। और उसने 50 के दशक में शुरुआत की और 2000 तक आते आते इतने डैम बना लिए कि अब पूरी एशिया के रिवर्स का जो फ्लो है वो कंप्लीटली टूटने लगा। भारत तो उसका सबसे बड़ा भोगी है। वी आर रिपेरियन country because water flows from the top and it goes down from India to Pakistan and then Bangladesh. ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में हम जानते हैं कि यामची which is called in Tibet and then it comes to India, it goes to मेघना as a बांग्लादेश। हम तो बड़ी सहिष्णुता के साथ जो भी कुछ मिला, 10% मिला, 10% में भी इंडस ट्रीटी के माध्यम से पाकिस्तान के साथ हमने इतनी अच्छी, जो which is called the most ideal model of the treaty in the world politics, बांग्लादेश में हमने कभी प्रॉब्लम नहीं की। तो ये स्थिति है और इन सबों का जड़ है कि why did we recognize Tibet, which was an autonomous region, integral part of China? That was the blunder which has been created and that is why we are still suffering. हम इस भावावेश में नहीं रहे कि हम बहुत मजबूत हो गए, पहले से मजबूत जरूर हुए हैं, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि में चाइना से अगर बात करेंगे तो आर्थिक संसाधन, मिलिट्री संसाधन को मजबूत करता है। आज 5 गुना ज़्यादा आर्थिक शक्ति उसके पास है, उसकी जो एजुकेशन सिस्टम है, उसका जो बाकी डिफेंस स्ट्रक्चर है और बाकी सभी चीज़ों में भारत से वो बहुत आगे है। तो ये भावावेश में नहीं रहे और कि हम वो चीन के बराबरी कर सकते हैं जो, लेकिन एक जो समीकरण है, जो एक फायदा है कि चीन का जो स्वरूप है, चाहे हिमालयन स्टेट में हो और बाकी एशिया के अन्य देशों में आप लोग पढ़ते होंगे, वो डिवाइसिव है, वो कोरेसिव है, वो इम्पीरियलिस्टिक स्ट्रक्चर को बढ़ावा देता है, चाहे वो उसका OBR हो या कई चीज़ों में आप पढ़ेंगे। तो आने वाले वर्षों में कई लोगों ने किताबें भी लिख दी हैं। सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर थे जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं कि चाइना हैज़ वन एंड अमेरिका हैज़ लॉस्ट। कई अन्य बातें कि चाइना सबसे बड़ी शक्ति बन गया है, लेकिन सुपर पावर के दर्जा आज भी हम नहीं दे सकते हैं। सुपर पावर हम उसे कहते हैं जो किसी भी देश में दूसरे देश को मार कर एक चाटा और वापस आ जाए, एंड दैट पावर इज स्टिल होल्ड्स अमेरिका अलोन, वो चाइना के पास भी नहीं है। तो कहने का अर्थ कि चाइना सुपर पावर बनने के पहले ही कहीं न डिमोलिश हो जाए, क्योंकि पूरे दुनिया में जहाँ पर भी वो गया है, जहाँ पर भी उसका
आर्थिक संसाधनों का विस्तार हुआ है, वहाँ के लोग नाराज हैं। बलूचिस्तान में और गदारपुर पाकिस्तान में जो सैटेलाइट स्टेट है चाइना का, वहाँ पर विद्रोह हो रहा है, वहाँ कल्चरल एक तरह से चीटिंग हो रहा है। वहाँ के मुसलमान लोग नाराज हैं, बोले कि वहाँ पर गौ मांस, ये सूअर का मांस खिलाया जाता है जो मुसलमान के लिए अत्यंत ही घातक है और वो उसे कभी कबूल नहीं कर सकते। उसी तरीके से नेपाल में आधा नेपाल, अब चूंकि नेपाल में बहुत साल रहे हैं, हम जानते हैं कि नेपाल का आधा काठमांडू इज कन्वर्टेड इनटू द कॉलोनी ऑफ चाइना। लेकिन वहाँ का कल्चरल जो कार्नेज जो शुरू हुआ है, जो किलिंग शुरू हुआ है, वो अद्भुत है। वो बाद में लोगों को पता चलेगा कि कितना नुकसान भारत से हटकर और चीन के नजदीक जाने के बाद चाइना को हुआ है। तो खैर कई ऐसी बातें हैं। मुख्य रूप में हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि हिमालयन रेंज जो है वो आर्थिक संसाधन का बहुत बड़ा स्वरूप है। ये हमारे लिए सांस्कृतिक विरासत भी है, आर्थिक संसाधन का भी है, और उससे जियोपॉलिटिक्स का मुख्य। जब लड़ाई लड़ी जाएगी तो समुद्र में भी लड़ी जाएगी, क्योंकि समुद्र से ज़्यादा हमारे हिमालयन रेंज में भी लड़ी जाएगी। तो हम अपने आप को जितना मजबूत करेंगे, तो त्रिमुखी जो सीमा विवाद चीन के साथ है, हम बहुत पिछले कुछ सालों में मजबूत जरूर हुए हैं, लेकिन अभी और मजबूती की ज़रूरत है, हमें और ज्ञान प्राप्ति की ज़रूरत है। हम अपने हिमालयन रेंज के बारे में बहुत चीज़ नहीं जानते हैं, तो एक ऐसा एकेडमिक ग्रुप बनता है, रिसर्च ग्रुप बनता है इस सेंटर के द्वारा, जो इन तमाम तरह की चीज़ों की जानकारी देता है, न केवल जियोपॉलिटिक्स के बारे में बल्कि इकोनॉमिक्स के बारे में, वहाँ से इकोनॉमी क्या बन सकती है, वहाँ के मेडिसिनल प्लांट कैसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कैसे हमारी सांस्कृतिक विरासत को वहाँ से जिंदा किया जा सकता है, कैसे कश्मीरियत को कैसे वही हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इन तमाम तरह की चीज़ें इस सेंटर के द्वारा प्रतिपादित की जा सकती हैं और लोगों को जोड़ा जा सकता है। नॉलेज का ये केंद्र बनेगा, लोगों में उत्साह बनेगा और एक नई पीढ़ी जो तैयार होगी वो ज्ञानवर्धक हिमालयन रेंज के बारे में होगी और दुनिया में। धन्यवाद।